Okay. Okay. So, so Aditi, what do you know about a patent? What is a patent as per you? Sir, exclusive right guaranteed over certain inventions Okay. for like term period of 20 years Right. as per our Patent Act. Right. So, not as per only our patent act. Generally, in most of Okay. the geographies across the globe, the patent term is generally 20 years from the filing date. So, the date on which the patent is filed, from that 20 years protection is given to the patent owner. So, Yes, sir. so now you know what is a patent. It primarily similar to other types of intellectual property like trademarks. It gives the owner the protection to protect the invention so that it cannot be used by other people without my permission. Right, Aditi? Yes, sir. Okay. So, Gargi, do you have anything to add? No, sir. Okay, fine. Now, since we are saying that my invention is protected, so what rights are being provided by patents? So if you see the last two bullet points, right to stop others from making, using, selling, offering for sale, and importing the invention. It means if I have an invention and I have a patent, so nobody else can use, make, sell, or import the invention in India without my permission. So I have right to stop others from doing these stuff. And the second right that my patent gives me is that owner of a patent can sell, license, mortgage, assign or transfer the rights to another party. So for example, let's say I have built a new QR code. I have built a new QR code which can be scanned by a simple camera. You don't need to have a scanner. Okay. Now this is a technology. This is a very novel technology, and I have a patent for it. So I have the right that I can sell my patent, or I can license, mortgage, assign, or transfer my patent to another party. For example, let's say Paytm, and in return I will get some money, or I will get some monetary thing from them, so that they can use my invention and I can have the benefit of providing my invention to them. Aditi, is this clear? Yes, sir. Gargi, anything to add to it? No, sir. Okay, so for example, let's say everyone, I have built a new sugar measuring machine, the sugar diabetes measuring machine, in which we don't have to take out the blood, we don't have to uh, insert a pin or a needle in the finger, right? So it is again a novel technology. So I have rights that nobody can make. For example, all the big companies like Mankind Pharma or Biocon or other companies, they cannot make, use, sell, or import such invention in India without my permission, because I have patented that particular invention and I have those rights that others cannot use without my permission. And all the rights are for a limited period, Aditi, and that limited period is 20 years. Is this clear? Yes, sir. Bhavna, can you hear us? Yes, sir, now. Okay, now you can hear us. Good, good, fine. So Gargi, फॉर टू हैव अ patent, एक patent होने के लिए हमारे पास हमारी इन्वेंशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट वी नीड टू लुक फॉर in order to get a patent for my invention? Sir, it should be noble, Right? non-obvious, and useful. Useful. Yes. So Bhavna, is Gargi saying correct that novel होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, Yes, और sir. यूजफुल होना चाहिए? Yes or no, Yes, Bhavna? sir. Okay. Yes, yes, sir. Okay.
So Aditi, for example, let's say I have an idea, but it has already been known in some other country or in India for years. So can I have a patent for it? Yes or no? No, sir. No, because my invention has to be novel. Novel means unique and new. It should not be known to somebody else before me. Therefore, in order to get a patent, my invention should be novel and it should be non-obvious. What does non-obvious mean? Non-obvious means that if there is a thing that already exists, it should not be like I make a very obvious change to it and I'll say, oh, I have an invention. No, it doesn't work like that. So there has to be some inventive step, some drastic advantage or improvement in that particular thing that should be done in order to have my patent. So second thing or second condition is non-obviousness. It should not be obvious to anybody else. For example, I'll tell somebody that I have this invention. The other person should not be able to say, अरे ये तो बहुत ही obvious है, this is very obvious, तूने क्या invent किया? No, my invention should be non-obvious. Third is usefulness, utility. मेरी इन्वेंशन की अगर कोई यूटिलिटी ही नहीं है, यूजफुलनेस ही नहीं है, तो वो कभी पैटेंट होगा ही नहीं, है ना? तो इसीलिए जो भी मैं इन्वेंशन कर रहा हूँ वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ. ऑल द इन्वेंशंस इन द वर्ल्ड, कुछ भी नया इन्वेंट होता है वो किस लिए होता है? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. If my invention is solving some problem, it means that it is useful and it has a utility and therefore it can be patented. So three conditions are: the invention should be novel, it must not be disclosed or practiced before, it should be non-obvious, it means it should have an inventive step, and it should be useful. It means it should be capable of industrial application. ऐसा नहीं है कि मैंने बस मतलब अपने घर में यूज कर लिया, नहीं. आइडियली ऑल द इन्वेंशन जो होती है वो किसी इंडस्ट्री में या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होनी चाहिए, तभी वो मेरी पैटेंटेबल होती है इन्वेंशन. अदिति, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, ग्रेट. नाउ थ्री टाइप्स ऑफ पैटेंट होते हैं. भावना, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ पैटेंट? Sir, utility patent, plant patent, and design patent. यूटिलिटी पैटेंट, प्लांट पैटेंट एंड डिजाइन पैटेंट. सो अदिति, यूटिलिटी पैटेंट जिनकी यूटिलिटी है, जिनकी यूजफुलनेस है, कोई भी यूजफुल फंक्शन अगर कोई पैटेंट परफॉर्म कर रहा है तो दोज विल फॉल अंडर यूटिलिटी पैटेंट कैटेगरी. इनका टर्म होता है 20 years फ्रॉम द अर्लीस्ट फाइलिंग डेट. जिस डेट पे फाइल हुआ उससे 20 years. प्लांट पैटेंट, इंडिया में प्लांट पैटेंट जनरली नहीं होता है, ये बाहर की कंट्रीज में होता है. इंडिया में प्लांट पैटेंट जनरली नहीं होता है. प्लांट पैटेंट होता है किस लिए? अगर मान लीजिए मैंने कोई, जनरली जितनी भी एग्रीकल्चर फॉर्म्स है, ऑल द एग्रीकल्चरल फॉर्म्स, राइट, दे रिसर्च एंड दे ट्राई टू डेवलप न्यू फ्रूट्स, न्यू फ्लावर्स, न्यू वेजिटेबल्स, right? So all those flowers, fruits, shrubs and vines that are produced asexually are the new variety of plants and they are protected under plant patent. And similar to utility patent, their life is also of 20 years from the earliest filing date. So always remember, इंडिया में प्लांट पैटेंट एज सच नहीं होता है, यूएस एंड बाहर की कंट्रीज में प्लांट पैटेंट होता है. डिजाइन पैटेंट बहुत ही सिंपल है. अगर कोई भी शेप को मेरे को डिजाइन कराना है, सो गार्गी, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ डिजाइन पैटेंट प्लीज? सर डिजाइन पेटेंट, सर हम लोगों ने जो सोलर कार वाला पढ़ा था शायद वो वाला. नहीं, आई टोल्ड यू द डिजाइन पैटर्न. अदिति, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिजाइन पैटर्न? कोई डिजाइन पैटर्न क्या हो सकता है, किस चीज का हो सकता है? एनी आइडिया? कुछ भी अंडर द सन दैट यू कैन थिंक ऑफ. Sir, any kind of a particular item like watch, a particular design of a watch or something, or Yes. like Yes. So the most, Bhavna, can you be on mute please? All of you please be on mute unless and until I ask you to unmute and say something. Please be on mute, everyone. Design patent. Design patent, the most
famous and important design patent in the history of patent is Apple iPhone shape. So Aditi, what is the shape of iPhone? It is a rectangular with rounded corners, yes or no? Yes, sir. So Bhavna, can you be please on mute? Just give me a minute, guys. सर ये ऑटोमेटिक म्यूट और अनम्यूट हो रहा है. Just give me a minute. Please be, yeah, you are on mute now. Okay. Okay. So the most important and famous design patent is the design patent of iPhone, which has a rectangular design with rounded corners. So Gargi, I told you, therefore Samsung cannot make phones similar to the shape of the iPhone. Do you remember this? Yes, sir. Yes. So Aditi, you will see all the phones of other companies, Realme, Xiaomi, Samsung. Those will always have a different shape than that of the iPhone because iPhone has a patent on its shape. Is this clear, Aditi? Yes, sir. Okay, fine. So now we know what is a patent, what rights does a patent gives to me, what are the types of patent, and what patent are there that can be in India or cannot be in India. Okay. Now, since I told you that for a patent, for an invention to have a patent, it should be novel. It should be novel. It means it should not have been disclosed or practiced before. उसको पहले से किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया गया हो या किसी को वो चीज पता ना हो, किसी ने उस चीज को इन्वेंट ना किया हो. तो किसी भी चीज को नॉवेल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी इन्वेंशन आया मेरे पास, हम उसके लिए क्या करते हैं, वी डू अ प्रायर आर्ट सर्च. वी डू अ प्रायर आर्ट सर्च. सो गार्गी, कैन यू टेल अस कि प्रायर आर्ट सर्च होता क्या है? Sir, it is a publicly available information in any form which is searched before the filing date of a patent application. राइट. सो अदिति, इन सिंपल लैंग्वेज, मान लो मैंने कोई इन्वेंशन आज निकाला और मैं उसका पैटेंट फाइल करने जा रहा हूँ. मुझे ये देखना है कि मेरे को मेरी इन्वेंशन नॉवल है या नहीं. तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि आज की डेट से पहले ऐसा कुछ सिमिलर मिल रहा है या नहीं, हाँ या ना, अदिति? Yes, sir. Yes, sir. राइट. सो द एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाइंग कि आज की डेट से पहले मेरे को कुछ मिल रहा है या नहीं, हम उसे क्या बोलते हैं, प्रायर आर्ट सर्च. क्या बोलते हैं? प्रायर आर्ट सर्च. सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग टू अदिति राइट नाउ. अदिति, हमने ट्रेडमार्क सर्च किया था ट्रेडमार्क की क्लास में. Yes, sir. ट्रेडमार्क सर्च क्या होता है? ट्रेडमार्क सर्च में हम ये देखते हैं कि सिमिलर ट्रेडमार्क पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं, राइट? यस और नो? Yes, sir. सिमिलरली इन प्रायर आर्ट सर्च हम ये देखते हैं हमारी इन्वेंशन से सिमिलर चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है या नहीं. इज दिस क्लियर नाउ? Yes. ओके, ग्रेट. कैन यू रीड द फर्स्ट बुलेट पॉइंट फॉर मी प्लीज, अदिति? Uh, Novel must have been disclosed, practiced before. फर्स्ट बुलेट पॉइंट. Patentable subject matter should be. Just give me a minute. I'm sharing a different Okay. PowerPoint. I'm sorry for that. Can you see this now? 3 bullet points. Yes, sir. Yes, please read the first bullet point. A prior art search is dedicated search to figure if there exists any evidence that could deem a patent application invalid. Prior art searches include 3 types based on the purpose of the search: novelty search, invalidity search, and FTO search. So a prior art search is a dedicated search just to see if there exists any evidence that could deem a patent or application invalid. It means if my invention is valid or invalid, is it novel or not? To find out this, we do a prior art search. Is it clear, Aditi? Yes, sir. भावना, क्लियर है?
अपने आप को अनम्यूट Yes, करो sir. भावना। ओके, अदिति प्लीज रीड द सेकंड बुलेट पॉइंट फॉर मी। Novelty patentability search before filing a patent application. A novelty search or patentability search is conducted before filing a patent application in the patent office to determine if the invention is novel before the inventor commits the resources necessary to obtain a patent. So, as I told, for example, I am filing a patent application. I have an invention and I am filing a patent application. But I need to see whether my invention is really novel or not. To do that, I will do a novelty or a patentability search so that I can be sure that yes, my invention is novel, and only then I should be filing a patent. So whenever somebody asks you what is the first step in filing a patent, you will say always कि सबसे पहले हमको नॉवेल्टी या पेटेंटेबिलिटी सर्च करना है और ये देखना है कि मेरी इन्वेंशन सच में नॉवल है या नहीं है। अगर मेरी इन्वेंशन पेटेंटेबिलिटी सर्च के बाद नॉवल है तभी मेरे को अपना पेटेंट फाइल करना चाहिए। गार्गी क्लियर है? Yes, sir. भावना? Yes, sir. ओके, ग्रेट। Sir, can you please explain the difference between the first and the second bullet once again? Because there is a slight difference only and I'm a Yeah, little bit confused. no. I will explain the first bullet point in a later session to you, Aditi. We are just Okay, sir. focusing on the second bullet point. Okay. Okay, sir. Okay. Fine. Can you read the third bullet point for me, Aditi? Sure, sir. Conducting this search before filing a patent application can help ensure that the application won't be rejected. And if during the search something does qualify as prior art, you can save your money by not opting for the already existing idea to get patented, or you can make enhancements in the future of your invention to render it as a unique idea. और ना मेरे को थर्ड बुलेट पॉइंट का पहला स्टेटमेंट है उसका मतलब समझाओ। Conducting this search before filing a patent application can help ensure that the application won't be rejected. क्या मतलब है इसका? If our patent is novel, then it अदिति won't be अदिति rejected. वेट It should be. अदिति वेट, भावना तुम बताओ मेरे को Yes, sir. क्या मतलब है इसका? Sir, एक मिनट. सर, अगर आपने पेटेंट एप्लीकेशन पहले से ही फाइल करके रखी हुई है तो वो रिजेक्ट नहीं होगी. गलत। अदिति क्या मतलब है इसका? Sir, by searching priorly that if we find that our patent is unique, novel, and there does not exist any prior patent, then it won't be rejected. Yes. तो Gargi, what is the meaning of this statement? Can you tell me? Sir, if we find ये सिंपल ये बोल रहे हैं कि अगर हम प्रायर आर्ट सर्च करते हैं तो हम इंश्योर कर पाते हैं कि मेरी जो पैटेंट एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं होगी। रीजन क्यों? क्योंकि अगर मैंने प्रायर आर्ट सर्च अच्छे से की है तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी इन्वेंशन नॉवल है या नहीं है। अगर नॉवल नहीं है तो मैं उसे फाइल ही नहीं करूंगा, अगर वो नॉवल है तो मैं उसे फाइल कर दूंगा। क्लियर है गार्गी? yes, sir. भावना क्लियर हुआ? व्हाट डज दिस मीन? Yes, sir. Yes, पक्का? yes, sir. इसकी सेकंड स्टेटमेंट बोलती है एंड इफ ड्यूरिंग द सर्च, अगर सर्च के टाइम पे मेरे के पास कुछ प्रायर आर्ट आ जाता है तो मैं अपने पैसे बचा सकता हूँ पैटेंट फाइल ना करके। क्योंकि अगर मेरे को प्रायर आर्ट मिल गई यानी कि मेरी इन्वेंशन नॉवल नहीं है तो मैं पैटेंट क्यों फाइल करूंगा? पैटेंट ना फाइल करके मैं अपने पैसे बचा सकता हूँ। इसीलिए जब भी आपके पास कोई भी इन्वेंशन आए आप सबसे पहले उसकी प्रायर आर्ट करिए, देखिए प्रायर आर्ट मिल गया है तो उस प्रोसेस उसको आगे ना बढ़ाए।
क्योंकि प्रायर आर्ट मिल गया तो आपकी इन्वेंशन नॉवल नहीं है, आपको उसको फाइल नहीं करना है। अगर आपको प्रायर आर्ट नहीं मिला है तभी आप उसकी इन्वेंशन को आगे बढ़ाइए और उसको पैटेंट फाइल करिए। क्लियर है भावना? यस सर। गार्गी इसमें क्या डाउट था? इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गार्गी। सर मुझे डाउट नहीं था सर, कॉल आ गया था बीच में, मेरी आवाज आप तक नहीं गई फिर। ओके, फाइन, फाइन, ओके। अब मैंने एक चीज बोली थी इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन दैट मेरी इन्वेंशन नॉवेल होनी चाहिए, नॉन ऑब्वियस होनी चाहिए। नॉन ऑब्वियस का मतलब क्या है कि कोई पुरानी चीज है, उसमें मैं एक चेंज कर दूं जो बहुत ही यूनिक सा चेंज हो, नॉन ऑब्वियस चेंज हो, तो भी मेरी इन्वेंशन क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी पैटेंटेबल हो जाएगी, राइट? इट मीन्स जो बेसिक आइडिया होता है वो कभी भी पैटेंटेबल नहीं होता है, हमें उसको थोड़ा सा डेवलप करना होता है, उसकी यूटिलिटी निकालनी होती है, उसको नॉन ऑब्वियस बनाना होता है, तभी मेरी इन्वेंशन पैटेंटेबल होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल दैट इज गिवन। थॉमस एडिसन, यू नो थॉमस एडिसन जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था, उनको पैटेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइट बल्ब पे नहीं मिला था, क्योंकि लाइट बल्ब पहले से ही पैटेंट था और वो प्रायर आर्ट में था, ठीक है। इंस्टेड एडिसन को इम्प्रूवमेंट के लिए मिला था लाइट बल्ब में। उन्होंने क्या नॉन ऑब्वियस चेंज किया था? उन्होंने बहुत ही थिन फिलामेंट जो आज हम देखते हैं यूज किया था अपने बल्ब में, और एक रिलायबल टेक्निक यूज की थी हॉट एलिमेंट को, जो कि रूम टेम्परेचर पे वायर्स को कनेक्ट कर दे। तो बल्ब तो पहले से था, पर वो बल्ब क्या था, एक तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था और बहुत मोटा फिलामेंट यूज करता था। तो उसने क्या किया, इम्प्रूवमेंट, एक थिन फिलामेंट लाया और वाइट हॉट फिलामेंट को ज्वाइन करने के लिए लीड वायर्स को यूज किया। यानी कि he made an improvement which is very non-obvious, which is novel, which is unique, which was not existing before. Therefore, he did not have any prior art and he got a patent. Is this clear, Aditi? Yes, sir. भावना क्लियर है? यस सर। गार्गी? गार्गी, आर यू ऑन कॉल? Fine, let's move ahead. Okay, so Aditi, you specifically ask कि पहले point, what is the difference between the first and the second point. Now Yes, you know yes, about, now you know about novelty search. Novelty search आपको पता है कि क्या होती है now, right? yes, yes. Now we'll talk about FTO search. Invalidity search we'll talk about later. FTO search. FTO search. So Bhavna, have we studied about FTO search? हमने पढ़ा है कि FTO search? नो सर। Okay, great. So मान लीजिए आई एम अ कंपनी, ठीक है, मैं एक कंपनी हूं जिसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और वो मार्केट में मैंने बेचना शुरू कर दिया। कल को मेरे पास 5 इन्वेंटर ऐसे आ गए जिनके पैटेंट है और वो कह रहे हैं कि देखो यार, तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो मेरी इन्वेंशन से, मेरे पैटेंट से सिमिलर है, और तुम क्योंकि मेरा पैटेंट मेरे को ये राइट देता है कि कोई और यूज ना कर पाए, इसलिए आप अपना प्रोडक्ट बंद कर दो, या मुझसे पैसे, या हमें पैसे दो हमारे पैटेंट को यूज करने के। भावना, सिनेरियो क्लियर है? यस सर। अदिति, इज सिनेरियो क्लियर टू यू? Yes, sir. आई विल रिपीट अगेन, एग्जाम्पल लेके। प्रशांत ने प्रोडक्ट बनाए और प्रशांत ने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। अदिति, भावना और गार्गी के पास एक एक पैटेंट है जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, मेरा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फेमस हो गया। तो अदिति, भावना और गार्गी को पता चला ऐसे ऐसे मार्केट में एक प्रोडक्ट है, और उन्होंने देखा रहे ये प्रोडक्ट तो मेरे पैटेंट से बिल्कुल रिलेटेड है, ये तो मेरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। तो आई वी शुड गो टू प्रशांत एंड आस्क कि तुम भाई अपना ये प्रोडक्ट बंद कर दो क्योंकि तुम हमारा पैटेंट यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पैटेंट एक्सक्लूजनरी राइट देता है दूसरों को स्टॉप करने के। तो मैंने गलती क्या की यहाँ पे,
जब मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहा या किया, उससे पहले मैंने एक सर्च नहीं की, पैटेंट सर्च, ये देखने के लिए कि कौन कौन से ऐसे पैटेंट हैं जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, और मैं उनसे पहले बात कर लूं कि यार मेरे को लाइसेंस दे दो या मैं तुम्हारा पैटेंट खरीद लेता हूँ क्योंकि मेरा प्रोडक्ट तुम्हारा पैटेंट यूज कर रहा है। भावना, क्लियर है सिनेरियो? Yes, sir. अदिति, Yes, sir. गार्गी, Yes, sir. ओके। तो ऐसी चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, हम उससे पहले एक सर्च करते हैं ऐसे पैटेंट्स की जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। और अगर मुझे कोई ऐसा पैटेंट दिखता है जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो मैं या तो उसको पहले से ही लाइसेंस ले लेता हूँ या खरीद लेता हूँ, या उससे बात कर लेता हूँ कि भाई जो पैसा लेना है ले ले, मेरे को मेरा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और तू मेरे को कल आना मत वापस, ये कहते हुए कि यू आर यूजिंग माई पैटेंट एंड प्लीज गिव मी मनी। So this exercise of identifying patents which are related to my product is known as FTO search. इसको बोलते हैं हम FTO search। बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, एफटीओ सर्च। और एफटीओ सर्च की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्रीडम टू ऑपरेट। सेकंड बुलेट पॉइंट में लिखा है। फ्रीडम टू ऑपरेट का क्या मतलब है, आई हैव द फ्रीडम टू ऑपरेट माई प्रोडक्ट इन द मार्केट। मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैं अपने प्रोडक्ट को ऑपरेट करूं मार्केट में। तो आपको समझ में आया, नोवेल्टी सर्च हम करते हैं पैटेंट फाइल करने से पहले, फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च करते हैं हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। अदिति, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay. Gargi, can you read the second bullet point for me? Yes, sir. Freedom to operate search is also known as infringement analysis. तेज बोलो, Gargi, your voice is too low. Hello. Yes, now it's fine. Freedom to operate search is also known as infringement analysis or clearance search to check whether any product or process utilized or carried out by an entity is not infringing or any live patents claim. इसमें दो चीजें हैं। एक है ये, अगर मेरा प्रोडक्ट है तो यानी कि एनी प्रोडक्ट और प्रोसेस यूटिलाइज और कैरिड बाय एन एंटिटी, मैं वो एंटिटी हूँ जो मेरा प्रोडक्ट है या प्रोसेस है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, वो अनइंटेंशनली किसी भी लाइव पैटेंट के क्लेम को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है। हमारे केस में क्या था, हमारे केस में क्या था, गार्गी, अदिति एंड भावना के पास अपने अपने पैटेंट थे, उनके अपने लाइफ पैटेंट के क्लेम्स थे, और मैं अनइंटेंशनली उनको यूज कर रहा था। यूज करना पैटेंट की टर्म्स में बोलते हैं इन्फ्रिंज करना। ऐसी चीज को रोकने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च करेंगे सबसे पहले, और देखेंगे कि भाई कोई भी अगर मेरे को ऐसा पैटेंट मिला है, तो मैं सबसे पहले उसके ओनर के पास, असाइनी के पास जाऊंगा और बोलूंगा प्लीज गिव मी द लाइसेंस और आई कैन परचेज, और और आई विल डू नेगोशिएशन विद दैट पर्टिकुलर assignee or owner of the patent to be safe when I launch a product. Is this clear, Aditi? Yes, sir. भावना, क्लियर है कि फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च कब की जाती है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. गार्गी, क्लियर है? Yes, sir. ओके। Aditi, can you read the first bullet point for me, please? A company ABC wants to launch a medicine in the market for treatment of flu, for which they have filed several patents after patentability search. वेट, एक कंपनी एबीसी, उसको एक मेडिसिन लॉन्च करनी है, और उसने अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे पैटेंट फाइल कर दिए। वो खुश है कि यार देखो मैंने पैटेंट फाइल कर दिया, मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ। सेकंड बुलेट पॉइंट पढ़ो भावना, कैन यू प्लीज रीड द सेकंड बुलेट पॉइंट फॉर मी, भावना? Yes, sir. However, the company did not conduct a freedom to operate study, considering the positive patentability study was sufficient for proceeding with the launch. पर उन्होंने फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च नहीं किया, उन्हें लगा कि यार हमारी पैटेंटेबिलिटी स्टडी पॉजिटिव थी, हमने सेवरल पैटेंट फाइल कर दिए हैं, तो हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। पर बाद में क्या हुआ, गार्गी, थर्ड कैन यू रीड द थर्ड बुलेट पॉइंट फॉर मी?
It was later sued by a company XYZ as one of its patents had a broad claim found to be infringed by a formulation of the ABC medicine, so they बस have to stop selling. बस जब उन्होंने अपनी मेडिसिन लॉन्च कर दी तो एक दूसरी कंपनी XYZ आई एबीसी के पास और उन्होंने बोला देखो हमारा एक ये पैटेंट है जो कि पूरा का पूरा तुम्हारी जो फॉर्मुलेशन है जो तुम्हारी दवाइयों का इंग्रेडिएंट है वो यूज कर रही है तो प्लीज स्टॉप द सेलिंग द मेडिसिन। तो इस केस में एबीसी ने पेटेंटेबिलिटी भी कर रखी थी, पैटेंट भी फाइल कर रखे थे, पर उन्होंने एफटीओ नहीं किया था बिफोर लॉन्चिंग देयर मेडिसिन। इस वजह से कोई भी पैटेंट आ गया और उनके प्रोडक्ट पे स्टॉप लगा दिया या ऑब्स्टेकल लगा दिया। अदिति क्लियर है? Yes, sir. इसीलिए भावना, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है इंडिया में, वर्ल्ड में, टेक्निकल प्रोडक्ट या मेडिसिन, हमेशा एफटीओ स्टडी करती है कंपनी। 6-6 महीने लगा देती है ऐसे पैटेंट ढूंढने में जो उसकी मेडिसिन या उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और जो भी पैटेंट ऐसा मिलता है उसके ओनर या असाइनी के पास जाते हैं या तो उस पैटेंट को खरीदने या उस पैटेंट को लाइसेंस लेने। क्लियर है भावना? Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा व्हाट इज अ पैटेंट, पावर ऑफ पैटेंट, टाइप्स ऑफ पैटेंट, व्हाट इज प्रायर आर्ट, व्हाट इज एफटीओ, एंड वी हैव सीन द एग्जांपल्स ऑफ एवरीथिंग। डू यू हैव एनी डाउट्स एनीवन? No, sir. गार्गी, No, sir. भावना, अगर तुम्हें कोई डाउट होता है यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज और यू कैन गिव मी अ कॉल आल्सो। ओके Okay, sir. ओके fine. If you don't have any question, we can drop off and we will meet with the next topics in the next session, which will happen most probably on Thursday. Is this clear, everyone? Okay, sir. Yes, sir.